this part is valid for all the classes. Okay, only the layout, my lesson plan can be little bit different for everybody, uh, but it is valid, the topics are valid for all of you whoever wants to study reflection in detail starting from scratch. So let's begin. So the topic starts from the introduction, that is, how do you see all different objects around you, different colors, um, and there are so many questions like why does sky look blue at daytime and black at night, and why do stars twinkle, and how are inverted image formed on a still water surface. So these all answers will be found in this particular chapter. The first question being, how do we see objects? Now suppose you are standing in a dark room. It is very difficult to see objects which are kept in a dark room. Why? Because there is absence of light. So light helps you see objects. That's not a very difficult thing to perceive. Light helps us see the object, but how? So basically light gets reflected from different objects around you and then reaches your eye. So suppose you're sitting in a room and you're looking at a chair. How is the chair visible to you? The chair is visible to you because the source of light in that room, maybe a tube light or a bulb or a candle or any source of light, emits its light rays on that object. Those light rays gets reflected from that object and reaches your eye so that you can see the object. Anything around you is visible to you. Any object around you is visible to you only when light rays are reflected from that object and then reaches your eye. So without reflection of light, the objects won't be visible. It will be invisible. I'll give you an example. बहुत बार तुमने देखा होगा मॉल में, लोग मॉल जाते हैं तो मॉल में कभी कभी किसी शोरूम या शॉप का जो डोर होता है या ग्लास का जो फसाड होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और लोग उससे टकरा जाते हैं. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट है, तो वहां से, वो डोर से या वो ग्लास के वॉल से जो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो बहुत मिनिमम है. मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट दे गेट थ्रू इट, दे पास थ्रू इट बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट. और क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और क्योंकि रेज ऑफ लाइट उससे रिफ्लेक्ट होने वाली बहुत कम है, इसलिए वो ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल है और लोग उससे टकरा जाते हैं. तो ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि हमें चीजें कैसे दिखती है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओपेक है तो वो क्लियरली दिखेगा, और ट्रांसपेरेंट है तो वो डिफिकल्टी होगी उसको देखने के लिए. राइट? ओपेक है मतलब सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो उस पर गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जा रही है एंड वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट है मतलब रेज ऑफ लाइट उसके थ्रू जा रही है एंड वी कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट. सो ओपेक और ट्रांसपेरेंट, यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है. विजिबल और इनविजिबल कॉन्सेप्ट भी यहां पे क्लियर हो जाता है. दूसरे एक टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद लाइट एमिट करते हैं एंड दे आर क्लियरली विजिबल, एंड दोज आर लूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Objects which produce their own light are called luminous objects. सीलिंग फैन तुम्हारे रूम में नॉन लूमिनस है. सीलिंग फैन इज नॉन लूमिनस बट इट कैन बी सीन बिकॉज दूसरे जो लूमिनस ऑब्जेक्ट्स है उसकी लाइट सीलिंग फैन पे जाके रिफ्लेक्ट होके तुम्हें तुम्हारे आईज में आती है, एंटर करती है, इसलिए तुम्हें सीलिंग फैन दिखता है. ठीक है? सो दूसरे सारे ऑब्जेक्ट्स पे ये सेम
कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. So we can see luminous and non-luminous objects when light falls from the objects and gets reflected and falls into our eye. And we can see luminous objects because light directly falls into our eye from the luminous object. So that is how we can see. So एक extra piece of information है, you can note it down or you can just listen to this. Nature of light had been controversial for hundreds of years. Newton proposed that light is made up of particles. Later, Haugen, इसका जो नाम है कुछ लोग इसको ह्यूजन भी बोलते हैं, बट एक्चुअली ये इट्स अ डच नेम जिसको प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा अजीब है. Haugen. Haugen proposed that light has wave nature. Again, प्लैंक proposed particle nature of light. तो न्यूटन ने बोला कि लाइट पार्टिकल से बना है, लेकिन हॉहेन ने बोला कि लाइट वेव से बना है. फिर प्लैंक वॉज अनदर साइंटिस्ट हु केम आफ्टर हॉहेन, और उसने बोला कि लाइट पार्टिकल से बना है. Nowadays it is considered that light has dual nature. ये तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, dual nature of matter. So nowadays it is considered that light has dual nature. Light behaves as particle when interacting with matter and as waves when interacting with waves. At later stage we may have a different consideration for the nature of light. Later stage matlab in future we might you can say discover something absolutely different from our considerations which we have been making till date. हो सकता है लाइट का कोई नया नेचर मिले. सो नेचर ऑफ लाइट के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है. अब एट प्रेजेंट लाइट इज कंसिडर्ड टू हैव डुअल नेचर. डबल नेचर है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव्स की तरह भी बिहेव करता है. ठीक है, इसको डिटेल में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे. ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था. तो लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड नोट दिस डाउन. अगर आप लोग ये वीडियो देखने के साथ साथ नोट भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. तुम्हारा आधे नोट्स चैप्टर के तो यहीं पे तैयार हो जाएंगे, आधे नहीं पूरे तैयार हो जाएंगे अगर तुम अच्छे से नोट करो हर एक डिटेल को वीडियो पॉज करके. सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which possesses energy and produces sensation of vision. So light एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एनर्जी पजेस करता है और सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है हमारी आईज में. ठीक है. Some interesting facts about light. लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है. लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव. इट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल. डू यू नो अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स? देखो, जिसने भी फिजिक्स में साउंड को पढ़ा है उसको ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा. ठीक है. ट्रांसवर्स वेव में द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसा दिखता है जो वाटर की सरफेस पे बनता है, ये ट्रांसवर्स वेव है. तो लाइट वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव. यहां पे जो पार्टिकल्स है जिससे लाइट बना है, लाइट किससे, कौन से पार्टिकल से बना है पता है तुम्हें? साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करके डिस्कवर किया है कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स नाम के कुछ एनर्जी पैकेट्स है, उससे लाइट बना है. ये जो फोटॉन्स हैं ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, और ये जो लाइट की एनर्जी है उसका ट्रांसमिशन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. मतलब द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
राइट? सो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इसको याद रखना। सेकेंड है, इसको कोई मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। मतलब लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, और इसका प्रूफ है हमारे पास। सन से अर्थ पे लाइट कैसे पहुंचता है? मून से अर्थ पे लाइट कैसे पहुंचता है? स्टार्स से अर्थ पे लाइट कैसे पहुंचता है? थ्रू वैक्यूम। बीच में तो स्पेस है, और स्पेस में तो कोई मटेरियल है नहीं, सिर्फ वैक्यूम है। तो कैसे आती है लाइट? लाइट वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। सो लाइट रेज का एक नेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है, कि इट डज नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड का ऐसा नहीं है, साउंड रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। साउंड और लाइट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। Light does not require any material medium for its propagation. Sound does require a material medium for its propagation. So light को क्यों नहीं चाहिए material medium? Why can it travel in vacuum? It is because light is made up of electromagnetic waves, and electromagnetic waves can travel in vacuum. यहाँ पे what is light में तुमने अगर देखा होगा, नोट किया होगा, light is an electromagnetic wave which possesses energy and produces sensation of vision. ये जो electromagnetic waves का nature है ना, electromagnetic waves do not require material medium for its propagation. That's why light can travel in vacuum. In isotropic medium, that is a medium which has some same properties throughout the medium, light travels in a straight line. A straight line which shows the direction of movement of light is called ray of light as shown in the figure. ये नीचे दिख रही है तुम्हें ray of light। तो कोई भी आइसोट्रोपिक मीडियम में, मतलब किसी मीडियम में जहां पे प्रॉपर्टी सेम है मीडियम की थ्रू आउट इट सेल्फ, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ऐसे बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जब आ जाती है, तब हम लोग उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तब हम लोग उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। A beam of light in which rays propagate parallel to each other is called parallel beam of light. A beam of light in which rays propagate to meet a point is called converging beam. See, this is converging beam. ये parallel beam of light है, ये converging beam of light है। Converging में the rays of light they meet at a point. ठीक है? Diverging beam. Diverging beam मतलब a rays of light which go away from each other, starting from a point but going away from each other. Diverging beam of light. So you have to remember bundle of rays of light, bundle of rays of light which are parallel to each other are is called a beam of light. ठीक है, पैरेलल बीम और बीम ऑफ लाइट सेम चीज होता है। अब बीम ऑफ लाइट, यहां पे लोग ने बोला है बीम ऑफ लाइट में पैरेलल भी हो सकता है, नॉन पैरेलल भी हो सकता है। करेक्ट है। एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट में रेज एक दूसरे से पैरेलल होती है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट में रेज प्रोपोगेट टू मीट एट अ पॉइंट, एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में द रेज मूव अवे फ्रॉम अ पॉइंट, द रेज मूव आउट ऑफ अ पॉइंट। That's a diverging beam of light. When a ray of light traveling through one medium strikes another medium, a part of the light may be reflected, a part may be transmitted, and a part may be absorbed. Always remember this. Whenever a ray of light traveling through one medium strikes another medium, strikes does not enter, not necessarily enters, but only strikes, then part of the light may be reflected, some part of the light is reflected, some part may be transmitted, and some part may be absorbed in that medium.
Which particular part is dominant depends on the nature of the medium on which the ray strikes. मतलब रिफ्लेक्टेड बीम या रिफ्लेक्टेड लाइट ज्यादा है, या ट्रांसमिटेड लाइट ज्यादा है, या एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ लाइट ज्यादा है, ये डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पे। जैसे मिरर है हमारे पास, तो मिरर पे जो भी रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है वो जनरली रिफ्लेक्ट हो जाती है, मोस्ट ऑफ इट। ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड। तो मिरर का नेचर है वैसा, राइट? जैसे कोई ब्लैक मेटल की चेयर तुम सनलाइट में रख दोगे, तो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम सो हॉट दैट यू वोंट बी एबल टू सिट ऑन दैट चेयर। That means most part of the light was absorbed, and this absorbed light energy got converted into heat energy, which increased the temperature of that metallic black chair. मतलब वो ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट है, it has capacity of absorbing most of the light for which falls on it, but mirror has the capacity of reflecting most of the light falls on it. तो अलग अलग सब्सटेंस या अलग अलग मैटर मटेरियल या मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। A highly polished surface is a good reflector of light, whereas a transparent medium is a good transmitter. A highly polished surface is a good reflector of light, whereas a transparent medium is a good transmitter. Always remember, highly polished surface का मतलब होता है मिरर, ठीक है? और ट्रांसपेरेंट मीडियम ट्रांसमीटर का काम करता है। हाँ, अगर ओपेक मीडियम है तो वो एब्जॉर्ब करेगा। The speed of light and all other electromagnetic waves in vacuum is 3 times 10 to the power 8 meter per second. अब यहां पे एक चीज नोट करो, all other electromagnetic waves. Now you might be having this question in your mind कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होता है कि जो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आपस के इंटरैक्शन से क्रिएट होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद ईच अदर और जो वेव प्रोड्यूस होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो यू विल हैव अनदर क्वेश्चन इन योर माइंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन क्लास 12th, तब तक तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? बट जस्ट इमेजिन कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। लाइट एक अकेला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ऐसे बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी मैं तुम्हें उसका एग्जांपल दूंगा। और ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये सब सेम प्रॉपर्टीज है। सो ये प्रॉपर्टी सिर्फ लाइट की नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी तुम देख रहे हो, दीज प्रॉपर्टीज आर ट्रू अबाउट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट ओनली लाइट, ठीक है? दे आर कंसर्न्ड विथ ऑल द अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. So speed of all the electromagnetic waves, including light, is 3 times 10 to the power 8 meter per second, which is very high. The speed of light wave is different in different media. ये जो speed of light है, ये vacuum में है या एयर में है। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, बट अलग अगर दूसरा कोई मीडिया ले लो तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट विल बिकम डिफरेंट। स्पीड ऑफ लाइट विल बिकम डिफरेंट, ओके? Something else to learn before that, we'll just finish this. Transparent medium क्या करता है? It allows the light to pass through it. For example, glass, air, water, सबको पता है। Translucent medium क्या होता है? It allows the light to pass through it partially, जैसे frosted glass या grounded glass, butter paper, waxed paper. These are all translucent mediums. Opaque substances क्या होता है? Which does not allow the light to pass through it. For example, wood, steel, wall. These are all opaque substances. Something extra to learn. All substances do not allow the light to pass through them with equal ease.
Substances are classified into three groups on the basis of the extent to which light passes through them. Substances are classified into three groups on the basis of the extent to which the light passes through them. This classification is given in this table, which we just studied. Colors in white light. So we are just studying about the characteristic of light, which is very important. If you want to start understanding the concept of reflection, first question comes to our mind that what is light. तो पहले light और उसकी characteristic को अगर study कर लोगे, then it will become very easy to understand the phenomena of reflection, because that depends on the characteristics of light. White light, that is light from sun or tube light itself, is made up of different colors. The different colors of light are electromagnetic waves of different wavelengths. White light अलग अलग कलर से बना है, ठीक है. White light में you will find violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red light mixed with each other. In short, you can remember all these colors as Vibgyor. You might have studied it. ये विबग्योर में इफ यू सी विजिबल लाइट में जो विबग्योर होता है अलग अलग कलर्स, उन सब की वेवलेंथ अलग अलग है. वायलेट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. तुम यहां पे देख रहे हो वेव छोटे हैं एक दूसरे के पास है, यहां पे वेव बड़े हैं एक दूसरे से दूर है. So the wavelength ranges from 400 nanometer to 700 nanometer. और मैं जो तुम्हें बोल रहा था कि दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, you might have heard about UV rays, that is ultraviolet rays, जो दिखते नहीं है, they are not visible. They are on the left side of the violet region of visible light. और रेड के राइट साइड में होते हैं इंफ्रारेड रेज. So these are other electromagnetic rays among some more. There are some more. Ultraviolet rays के लेफ्ट साइड में होते हैं एक्स रेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक्स रेज के लेफ्ट साइड में होते हैं गैमा रेज. मतलब यहां पे आते हैं एक्स रेज जिसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज से भी कम है, और यहां पे आते हैं गैमा रेज. ये सब इनविजिबल है बट दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इंफ्रारेड के राइट साइड में आते हैं माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव अवन सबने सुना होगा, एंड रेडियो वेव्स जो रेडियो टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं. इनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड से भी ज्यादा होती है. सो दीज आर इनविजिबल. गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब इनविजिबल है. विजिबल क्या है? सिर्फ ये वाला रीजन विजिबल है जो हमें दिखता है. बट ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which you will study in higher classes. Okay, so these are all the colors in white light, visible light, and the spectrum of electromagnetic waves. यहाँ पे remember में बोला है silver is one of the best reflectors of light, and because silver is the best reflector of light, it is used for making mirrors. मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, बैक सरफेस, उस पर सिल्वर का कोटिंग करते हैं और फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर लेड ऑक्साइड या रेड लेड का कोटिंग करते हैं या कोई पेंट कर देते हैं. तो मिरर के बैक साइड में तुम देखोगे पेंटेड सरफेस होगी, उसके अंदर रिफ्लेक्टिंग लेयर है सिल्वर का, और आगे देखोगे मिरर के तो तुम्हें तुम्हारा फेस दिखेगा. दैट इज the surface at which the ray of light strikes. Reflection of light. Now
we begin with our topic, the main topic, that is reflection of light. Let me zoom it a bit. So, a plain glass sheet, one side of which is coated with a thin layer of silver metal, is called a plane mirror. जो तुम्हारे घर पे होता है, plane mirror. We use silver metal because silver is one of the best reflectors of light. It almost reflects 100% of light which falls on it, almost 100%. Generally, to avoid removal of this layer of silver, क्योंकि mirror fade हो जाता है अगर silver निकल जाता है तो, a layer of red paint is coated on it, red lead or lead oxide. The reflecting surface of mirror is the side opposite to the silver coating. Opposite to the silver coating मतलब अगर silver coating पीछे की साइड है, मिरर के पीछे सिल्वर कोटिंग किया है, तो आगे वाली साइड होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मतलब रेज ऑफ लाइट आगे वाली सरफेस पे इंसिडेंट होगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. When the light falls on the reflecting surface, it bounces back. The phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called reflection. ये reflection की definition. The phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called reflection. तो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर के ऊपर, वहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है एज रिफ्लेक्टेड रे, एंड बीच में होता है नॉर्मल. नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है. अच्छा, इंसिडेंट रे, द रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल पी एन एन डैश आई. और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज एन डैश एन ओ एन क्यू, एन डैश एन क्यू, which is angle of reflection, which is R. ठीक है. सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर, आई एंड आर. एंड इट इज ऑलवेज सीन, ये हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी देखेंगे, बट इट इज ऑलवेज सीन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल to the angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection are always equal. This is one of the laws of reflection which we are going to study. Okay, this point N is the point of incidence, the point which is on the reflecting surface at which the incident ray strikes the reflecting surface. और वहां से रे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आ जाती है. तो रिफ्लेक्शन का सबसे मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन का पार्ट है, दैट इज द रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक एंड कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस. द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस bounces back and enters the same medium after reflection. That is known as reflection. Laws of reflection. It has been found that reflection of light takes place according to the following two laws. First law is, when a ray of light is incident on a mirror, it is reflected from the mirror in such a way that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. That is, I is equal to R. When a ray of light is incident on a mirror, it is reflected from the mirror in such a way that angle of incidence is equal to the angle of reflection. Therefore, I is equal to R. ये same law मैंने तुम्हें अभी बताया. I just told you about this law over here. हमेशा याद रखना, angle of incidence और angle of reflection are always equal in the case of reflection. जो लोग आगे रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं या जो लोग क्लास 10th में जाके रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, उनको ये समझ में आएगा कि रिफ्रैक्शन में भी ऐसा एक लॉ है जो रिफ्लेक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए.
ठीक है, सो रिफ्लेक्शन में याद रखना फर्स्ट लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. The incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence, they all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray, and the normal at the point of incidence, ये सारे एक ही plane पे lie करते हैं. They all lie in the same plane. The above laws of reflection are applicable to plane mirrors as well as spherical or parabolic mirrors. The reflection of light from a smooth surface takes place in the regular fashion, and this reflection is called regular reflection as shown in the figure 6a. कोई भी smooth surface पे जब reflection होता है ना, so it is this way. This is regular reflection from a smooth surface. तो rays of light आती है पैरेलल टू ईच अदर, इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है बीइंग पैरेलल टू ईच अदर. यूनिफॉर्मिटी है यहां पे, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है. रेज ऑफ लाइट आती है और अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. सी दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ओवर हियर. नन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. इंसिडेंट रेज माइट बी पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नेवर पैरेलल टू ईच अदर. So that is diffused or irregular reflection. Diffused reflection. ये irregular surfaces पे होता है. So अगर तुम पूछो कि regular reflection कहाँ पे होता है, प्लेन मिरर पे होता है. प्लेन मिरर पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बिकॉज तुम्हें अपना फेस दिखता है. तो जिस सरफेस पे तुम्हें अपना फेस दिखता है वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. जिस सरफेस पे तुम्हें इमेज दिखती है वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. प्लेन मिरर पे होता है. स्टिल वाटर सरफेस, स्टिल वाटर सरफेस, स्टिल मतलब स्टेडी, स्टिल वाटर सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है. मेटालिक सरफेसेस, शाइनी मेटालिक, मेटालिक शाइनी सरफेसेस पे होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो ये सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है. सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ लेट मी टेल यू कि ये रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का क्या एप्लीकेशन है. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हेल्प्स यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. अब तुम जहां पे बैठे हो यू कैन सी different objects around you. You can see a chair, you can see a table, you can see the wall, you can see the ceiling fan. How you can see these objects? Due to reflection, I agree. But due to which type of reflection? Regular or diffused? Of course, diffused reflection. So diffused reflection helps you to see the objects around you. Diffused reflection helps you to see the objects around you. ठीक है. And regular reflection, please note this down, helps to see an image on a surface. किसी भी सरफेस पे जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो उस पर इमेज दिखती है. तो इमेज देखने के लिए हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन करने वाला सरफेस चाहिए. और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो तुम्हें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करता है अराउंड यू. उसमें इमेज नहीं दिख सकती. वॉल पे तुम्हें किसी की इमेज नहीं दिखेगी. हाँ, शैडो दिख सकता है, इमेज नहीं दिखेगी. ठीक है.
चलो नेक्स्ट, यहां पे एक स्पेशल केस दिखाया है। सपोज एक इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट रे is striking normally on a surface, making an angle of 90 degree with the surface. Can anybody guess that what is the angle of incidence over here? You can pause the video over here and think about it. What is the angle of incidence over here? And the angle of reflection. Over here, if someone says that angle of incidence and reflection is 90 degree, you are wrong. The angle of incidence is 0 degree and the angle of reflection also has to be 0 degree in the case of normal incidence. So whenever a ray of light strikes normally to a surface, the angle of incidence and reflection both are how much? 0 degree. Why? Because let me ask you this question, where is the normal situated? नॉर्मल का कहाँ होता है? नॉर्मल क्या होता है पहले ये बताओ। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो यही है, मतलब नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। अच्छा, इंसिडेंट रे अगर ऐसे स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम लाइन। द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम लाइन, right? So incident ray and reflected ray, they both are in the same line, they are in the same line. अगर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे सेम लाइन पे है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री मत लिख लेना गलती से भी। यहां पे कॉशन दिया है तुम्हें, यह भी समझना जरूरी है क्योंकि यहां पे बहुत लोग गलती करते हैं। If in the question it is given that incident ray makes an angle of 30 degree with the plane mirror, 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है? प्लेन मिरर के साथ बना रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री मत ले लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, मतलब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंड वी नो दैट नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, मतलब ये पूरा एंगल एम एन एन डैश 90 डिग्री है, जिसमें से ये 30 डिग्री हुआ तो ये बाकी का एंगल कितना हुआ? 60, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 60 डिग्री। तो मुझे बताओ कि अगर ये है क्यू एन एम डैश कितना होगा? 30 डिग्री ऑफ कोर्स। वाई? बिकॉज एम डैश एन एन डैश भी 90 होगा, लीनियर पेयर। थोड़ा सा ज्योमेट्री भी है इसमें, लाइंस एंड एंगल्स जैसा, इजी है बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ओके, let's talk about object and image. So object is something which we are looking at or which we want to see. An object either emits its own light or reflects the light incident on it. जैसे sun, bulb, candle flame, these are all objects, these are all luminous objects. लेकिन दूसरे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, चेयर, टेबल, बॉल, moon, these are all non-luminous objects. An object can be seen by light coming from it. ऑब्जेक्ट दिखेगा तब जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे तरफ आएगी, या फिर वो खुद की लाइट एमिट करके हमारे आईज की तरफ उसकी लाइट आएगी, तब वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसलिए डार्क रूम में ऑब्जेक्ट दिखते नहीं है, क्योंकि डार्क रूम में कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होते, ना कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे तरफ आ रही है, क्योंकि जहां लाइट ही नहीं है वहां पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे? ठीक है, सो whenever the rays of light gets reflected from the object and they reach our retina, they form an image on our retina, and these
images which are formed on any screen like the retina of our eye are known as real images. तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता कैसे है? बिकॉज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली जाके एक इमेज बनाती है हमारे रेटिना पे, और उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज. रियल का मतलब द रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली गोइंग इनसाइड आर आई एंड मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इनसाइड आर आई विच इज नोन एज रेटिना. तो कोई भी इमेज जब एक स्क्रीन पे बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट से बनता है तो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं. और एक एग्जांपल देता हूं, हमारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर से जो रेज आती है वो व्हाइट बोर्ड पे जाके इमेज बनाती है. सो दैट इमेज इज ऑल्सो रियल इमेज. तुम मूवी हॉल में जाते हो मूवी देखने, वहां भी एक प्रोजेक्टर होता है, वो प्रोजेक्टर मूवी हॉल के स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाता है. कैसे बनती है इमेज? द रेज ऑफ लाइट विच आर एमिटेड बाय द प्रोजेक्टर दे एक्चुअली मीट on the screen and they form an image there. That's how you can see the movie. So these are all the examples of real images. फिर से अगर मैं तुमसे पूछूं real images के example क्या है? The image formed by any object by the rays of light coming from any object in front of our eye on our retina is example of a real image. The image formed by projector on a screen is also an example of real image. So real image की definition क्या है? Please note कर लो. A real image is formed by actual intersection of rays. मतलब rays of light जब actually कहीं जाके meet करती है, intersect करती है, those can be reflected or refracted. Don't go into refracted now, but we are talking about image. Image can be formed by the intersection of rays of light. It does not matter ये rays of light reflect होके आ रही है या refract होके, does not matter. But when the rays of light actually uh, intersect or meet at a point, they will always form a real image. Okay, this image can be seen if a screen is placed at that point. मतलब ये image देखने के लिए हमें क्या चाहिए? Screen. At the point of intersection, if there is a screen, we can see this real image. A real image is formed in front of a mirror. In front of a mirror. Now this is debatable because this pertains to spherical mirror. Spherical mirror, okay, not plane mirror. क्योंकि plane mirror में तो real image बनती ही नहीं है. Plane mirror में virtual image बनती है. तो हम लोग प्लेन मिरर और उसकी इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, बट रियल इमेज क्या होती है अब ये क्लियर होना चाहिए. रियल इमेज इज समथिंग विच इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल, विच इज फॉर्म्ड ऑन आवर रेटिना, राइट, और formed on a screen by a projector. These are all real images, and real images can be formed only by the actual intersection of light. On the other hand, an image which is formed at a point from where the reflected or refracted rays appear to diverge is called virtual image. कभी कभी ऐसा होता है रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती है, बट दे अपियर टू मीट एट अ पॉइंट और दे अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट. वहां पे वर्चुअल इमेज बनती है. वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती. वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन. आई नो एवरीबडी नीड्स मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज का इतना इंफॉर्मेशन मैंने दिया नहीं है. मैंने तुम्हें बताया था एक बात अभी कि प्लेन मिरर पे कभी रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है. सो आई विल शो यू इट्स रे डायग्राम नाउ. प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनती है दैट इज बिहाइंड द मिरर, नॉट ऑन द मिरर. ऐसा हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वी फील दैट देयर इज समबडी similar to us standing behind the mirror, looking at us. Somebody looking just like us in front of us, that person is standing. Same person who is just like us, लेकिन वो मिरर के पीछे है. अब तुम अगर मिरर के पास जाओ तो वो जो सामने इमेज है वो भी पास आएगी, तुम मिरर से दूर जाओ तो वो इमेज भी दूर जाएगी. सो देयर इज सम काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन हैपनिंग बिहाइंड द मिरर. ये जो इमेज फॉर्मेशन है ना इन प्लेन मिरर विच यू सी एवरी डे इज
the virtual image of yourself. So virtual image is formed in plane mirror behind the mirror, not on the mirror but behind the mirror. जैसे रियल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज होती है बिहाइंड द मिरर, इट फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर. ओके, यहां पे बोला है कि वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज के बारे में बोला था पहले कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. तो हम हमेशा याद रखना वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ मिरर. यहाँ पे लिखा भी है, मैं नोट कर हाईलाइट कर देता हूँ. वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ मिरर. इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखा बताया, डिस्कस किया. सो we will locate the position of images by drawing ray diagrams. So ray diagrams are, we'll take help of ray diagrams to make the images. To locate the position of object, always find out the point of intersection of incident rays, while to locate the position of image, always find the point of intersection of reflected or refracted rays. तो इंसिडेंट रे जहां पे मीट करती है वो ऑब्जेक्ट होता है, और रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट करती है वहां पे बनती है इमेज, और ये रे डायग्राम से बनती है. सो दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर. यहां पे कुछ भी जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, एंड यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक्स, ऑल ऑफ यू, नो मैटर फ्रॉम विच स्टैंडर्ड, विच बोर्ड यू आर फ्रॉम. रिफ्लेक्शन यूनिवर्सल फिनोमेना है, ये सीबीएसई आईसीएसई देख के नहीं पूछा जाता. ये फिजिक्स का फिनोमेना, और फिजिक्स पूरे यूनिवर्स में सेम है. तो कोई ये नहीं बोलेगा मेरे बुक में तो ये डायग्राम नहीं है तो मैं ये नहीं बनाऊंगा. नहीं, तुम्हें ये बनाना है डायग्राम. ठीक है, चलो. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है. अच्छा, मिरर को देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है. मिरर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, प्लेन है, एम एम डैश, और नीचे जिगजैग लाइन है. मिरर के नीचे जिगजैग लाइन है. ठीक है, ये जिगजैग जो लाइन है दैट इज पेंटेड और सिल्वर्ड सरफेस. ठीक है, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो कभी भी सिल्वर्ड सरफेस पे हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं देखेंगे. सिल्वर्ड सरफेस हेल्प्स द रिफ्लेक्शन, बट रिफ्लेक्शन हैपेंस फ्रॉम द प्लेन सरफेस विच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सिल्वर्ड सरफेस के ऊपर तो पेंट कर देते हैं. तो ग्लास मिरर के पीछे देखोगे तो कुछ भी नहीं है, वहां पे पेंटेड सरफेस है, लेकिन आगे देखोगे तो वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ठीक है, नाउ यहां पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट से दो रेज ऑफ लाइट आ रही है, ओ एन डैश एंड ओ एन. ओ एन डैश एंड ओ एन. ओ एन जो रे ऑफ लाइट है, दैट इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इट मीट्स at the point n dash. N dash पे there is a dotted line which is known as, ये dotted line है which is known as, क्या बोलते हैं इसको, ये जो dotted line है that is your normal. Normal is an imaginary line which is perpendicular to the reflecting surface. ये है नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल है. ठीक है, ये दोनों रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट विच आर ओ एन एंड ओ एन डैश, दे स्ट्राइक द नॉर्मल एट पॉइंट एन 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 डैश, और यहां से ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे गेट रिफ्लेक्टेड. मतलब यहां पे जो इंसिडेंट रे है इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पे, इट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is equal to this angle of reflection. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों में सेम है. So they both these rays, incident rays, are following the laws of reflection.
अच्छा, फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे गेट रिफ्लेक्टेड। अच्छा, ये जब दो रेज रिफ्लेक्ट होती है in the form nr, in the path nr and n dash r dash, they actually seem to diverge from each other। तो ये कहीं मीट तो नहीं कर रही है, तो डाइवर्ज हो रही है, तो इमेज कहां बनेगी? हाँ, बट इफ यू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स in the direction ni and n dash I, they appear to meet behind the mirror at a point I, जहां पे तुम्हें इमेज दिखेगी। मतलब अगर तुम्हारी आई यहां पे है, जहां पे ये आई है, then you will see an image over here. This image is exactly below the object। जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट बिलो ये इमेज बनेगी। मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतना ही दूर ये इमेज होगा। मिरर से जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूर, एक्चुअली यहां पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, उतना ही दूर ये इमेज होगा। जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है, उतना ही पीछे इमेज मिरर के पीछे, उतना ही दूर इमेज मिरर के पीछे है। मतलब द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज द सेम। द ओनली डिफरेंस इज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेज इज बिहाइंड द मिरर। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन? आर दीज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीटिंग? आर दीज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीटिंग? These rays of light are not actually meeting. They are appearing to meet behind the mirror. They are appearing to meet behind the mirror. The rays of light are not actually meeting, but they are appearing to meet behind the mirror. ठीक है? So, since the rays of light are not actually meeting, but they are appearing to meet behind the mirror, hence this image is virtual image. This is not a real image, क्योंकि real image में तो rays of light actually intersect. In virtual image, the rays of light appear to intersect. They appear to meet at a point. So this particular image is virtual image, not real image. So we see that virtual image is formed when reflected rays are diverging. जब reflected rays एक दूसरे से दूर जाती है, in this case n r and n dash r dash, we see that a virtual image gets formed but behind the mirror. That is, reflected rays do not actually meet, but virtual image can be located by producing the reflected rays backward behind the mirror. So they appear to meet. ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, यहाँ से निकल रही है रेज, ऐसा लग रहा है। So virtual image is formed at point I. Virtual image cannot be projected on a screen because the rays do not actually meet. So virtual image can be formed behind the mirror, but it cannot be formed on a screen. And virtual image is formed behind the mirror. तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नंबर वन, रियल इमेज का जो पॉइंट है, दैट इज इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। नंबर टू, it can be projected on a screen, and number 3, it is formed in front of a mirror। ये सारी रियल इमेज की कैरेक्टरिस्टिक है। वर्चुअल इमेज में it is formed when the rays of light do not actually meet, they appear to meet behind the mirror, they appear to be coming from behind the mirror। Virtual image cannot be projected on a screen, which is number 2, and number 3, it is formed behind the mirror for real object। Of course the object is always real। So remember, an image is formed when reflected or refracted rays of light actually meet, or from where the rays of reflected or refracted light appear to originate। ठीक है? तो on the basis of these two facts, real and virtual images can be understood। The position of the image formed by a plane mirror। So
यहां पे एक ऑब्जेक्ट O है और ये ऑब्जेक्ट की इमेज है I, एंड एज यू कैन सी देर आर टू रेज ऑफ लाइट. वन इज इंसिडेंट नॉर्मली OP, which is reflected back along the same path PO. But if you produce it backwards, this is the PI, which is the imaginary ray of light behind the mirror. Acha, another reflected ray is ON, sorry, incident ray is ON from the object, and reflected ray is NR. When NR is produced backward, it meets at point I. Okay, so point I is the point where point I is the point where the rays of light appear to meet behind the mirror. So this is the position of the image of the object O, which is at the same distance from the mirror as the object is in front of the mirror. Now, what are the characteristics of this image formed by plane mirror? Image formed is virtual and erect. Virtual means the rays of light are not actually intersecting, they are appearing to meet behind the mirror. Erect means standing straight. If the image is seen, if your own image is seen in the mirror, if you are standing straight on your feet, the image will also stand on its feet. Means the image will be erect. Erect means standing straight, not upside down, but erect. Okay? The distance of the object from the mirror is equal to the distance of the image from the mirror. Image distance and object distance are always same. जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतना ही दूर इमेज होगा मिरर से, बट मिरर के पीछे होगा इमेज. ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज होगी, जितना छोटा ऑब्जेक्ट उतनी छोटी इमेज. ये तुम्हें दिखता है मिरर में, तुम्हारी साइज और तुम्हारी इमेज की साइज अलग अलग नहीं होती, सेम होती है. The image is laterally inverted. Now this is very interesting. What is lateral inversion? Suppose तुम मिरर के सामने खड़े हो and you raise your right hand, तो तुम्हें मिरर में दिखता है कि तुम्हारी इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रही है. सो इमेज लैटरल इन्वर्जन हो जाता है इमेज का व्हेन इट इज अ virtual image. Virtual image is always laterally inverted. Image formed by plane mirror is always laterally inverted. ठीक है, तुम अपना लेफ्ट हैंड रेस करोगे तो इमेज लगेगा कि इमेज अपना राइट हैंड रेस कर रही है. तुम्हें अगर इसको और अच्छे से नोटिस करना है तो यू टेक योर बुक in front of the mirror and keep your book in front of the mirror and see the images of the objects, of the letters of the books, not the objects but the letter. Yeah, those are also objects, but yeah, see the letters. उस पे जो letters होंगे, जो printed letters है, वो भी laterally inverted होंगे. The printed letters will also be laterally inverted. Laterally inverted मतलब वो उल्टे नहीं हो जाएंगे, अपसाइड डाउन नहीं हो जाएंगे, बट राइट और लेफ्ट उनका स्विच हो जाएगा. ठीक है, तो अगर लेट्स से इफ आई हैव बी और इसका जो इमेज होगा मिरर में वो ऐसा होगा. बी विल लुक लाइक दिस इन मिरर. ठीक है, इफ आई हैव लेट्स से जेड, इट विल लुक लाइक दिस इन मिरर. लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको. Right appears to be left and left appears to be right. This always happens with virtual images. So these are the characteristics of image formed by plane mirror. एक misconcept है, if half the mirror is painted black, the image formed by such a mirror will also be half. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अगर तुम मिरर को हाफ कर दोगे तो तुम्हारी इमेज छोटी थोड़ी हो जाएगी. The image of point B, it is formed at B dash. The complete image A dash B dash is formed, but the image is formed with a reduced intensity. Image की intensity थोड़ी कम हो जाएगी, brightness कम हो जाएगी. मतलब जितना छोटा मिरर होगा इमेज उतनी ही साइज की फॉर्म होगी, बट उसकी इंटेंसिटी छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी. टू व्यू अ फुल साइज, मैं लर्निंग प्लस पढ़ रहा हूं. टू व्यू अ फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन, just a moment.
To view a full size image of a person, the minimum size of plane mirror required is equal to half the height of the person. अगर तुम्हारे हाइट से हाफ साइज भी होगी प्लेन मिरर की तो तुम्हें उसमें फुल इमेज अपनी दिख जाएगी, लेकिन इफ यू have smaller mirror than that, then it will be difficult to see the full size person in that. Use of plane mirror: it is used in dressing mirrors as a looking glass, it is used in barber shop, it is used in periscopes and kaleidoscopes, it is used in solar cookers. So this part was all about plane mirrors and reflection. Okay, so in the next part, which is going to be huge, we are going to cover um, spherical mirrors, ray diagrams, concave and convex, which are types of spherical mirrors, and some numericals based on it. So I'll see you in the next video. Bye bye.